जो बड़ी खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा 9 जून को। तो शपथ ग्रहण की तारीख और समय के बारे में जानकारी सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को उनकी जीत पर फोन करके बधाई दी है और उनसे G7 में मिलने की भी बात कही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को 90 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बधाई संदेश आया है और इसी कड़ी में ब्रिटेन के पीएम ने भी पीएम मोदी को फोन करके उनके चुनावी जीत के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। क्योंकि मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। बांग्लादेश की पीएम से बात की है, शेख हसीना से बात की है और शेख हसीना को शपथ ग्रहण का न्योता भी दिया है, यानी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बुलाया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शपथ। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন দীপ ইনফরমেশন। তো বন্ধুরা, আপনারা যেমনটা এর আগের ভিডিওটিতে দেখলেন যে ফিজা খান কিভাবে ভারতের বিজেপি পার্টি আর ভারত সরকারের বর্তমান ক্ষমতায় থাকা সরকারের উপর কিভাবে রেগে গেছে। নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে যতটা তার ভেতরে বীজ ছিল সবটা উগড়ে দিয়েছে, এমনকি যত স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলার দরকার ছিল সব বলে দিয়েছে। বিজেপি পার্টি যে টার্গেট রেখেছিল সেই পারফরম্যান্স পূরণ করতে পারেনি, তাই উনি অনেক আনন্দিত ছিল। কিন্তু ফাইনালি যে আবার বিজেপি পার্টি নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে সরকার গড়তে চলেছে, এমনকি পিএম মোদী নরেন্দ্র মোদী আবার যে শপথ গ্রহণ করবে এই বিষয়টাকে নিয়ে তিনি কি না বলেছেন, কিন্তু ফাইনালি এখন খবর বেরিয়ে এসেছে, এমনকি ডেট ফিক্সড হয়ে গেছে যে 9 জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও পুনরায় ক্ষমতা বসার জন্য শপথ গ্রহণ করতে চলেছে। এই বিষয়টাকে দেখে ফিজা খানের হাওয়া পিছন দিক দিয়ে ফুস হয়ে গেছে। কেননা বর্তমান সময়ে ফিজা খান ভারতকে নিয়ে যত রকমের স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলার দরকার ছিল সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে। এমনকি ভারতের প্রতি যত রাগ, তার ক্ষোভ যা ছিল সমস্ত কিছু উগড়ে দিয়েছে তার মিডিয়ার সামনে। কিন্তু তাদের যে ঘরের ভেতরে অবস্থা, তাদের যে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা, সে সমস্ত নিয়ে তিনি তার কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন। এমনকি কিভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বড় বড় দেশের কাছে গিয়ে, এমনকি মুসলিম দেশের কাছে গিয়ে কাটরনে বলে আল্লাহর নামে কিছু দান করুন, না হলে আমাদের দেশ চলবে না। যাই হোক, আসি মেন টপিকে। যখন থেকে ভারতের ভেতরে প্রধানমন্ত্রী 9 জুন শপথ গ্রহণের ডেট ফিক্সড হয়ে যায়, তারপরে থেকে পাকিস্তানের ভেতরে দুঃখের ছায়া নেমে আসে। পাকিস্তান আবারও ভাবছে আমাদের কপাল আরো পুড়বে, কেননা 2 বছরে পাকিস্তানের হাতে অলরেডি কাটরা ধরিয়ে দিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে মেরে আসছে। তাহলে এখনো 5 বছর কি আবারও আমাদের সাথে এর থেকে খারাপতর করে দিবে নরেন্দ্র মোদী? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা ভাবতে তাদের পায়ের তলে সরে যাচ্ছে। তার থেকে বড় ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 9 জুন যেদিন শপথ গ্রহণ করবে, সেই শপথ গ্রহণে বিশ্বের বড় বড় লিডার কিন্তু সেখানে আসছে শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে। এমনকি ভারতের তরফ থেকে অনেক দেশকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ। এই সবকিছুকে দেখে তাদের মনে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা তো ভারতের পড়শি দেশ, তাহলে আমাদের দেশকে কেন নিমন্ত্রণ করে না? অথচ আমাদের পড়শি দেশকে নিমন্ত্রণ করছে, দেশের বড় বড় লিডার গুলো আসছে। যাই হোক বন্ধুরা, আমি কথা না বেড়ে পুরো ভিডিও ক্লিপটা আগে দেখে নিন। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी को उनकी जीत पर फोन करके बधाई दी है और उनसे G7 में मिलने की भी बात कही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को 90 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से बधाई संदेश आया है और इसी कड़ी में ब्रिटेन के पीएम ने भी पीएम मोदी को फोन करके उनके चुनावी जीत के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग सेरेमनी को एक बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग हो चुकी है और नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है। मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। और इसी के साथ कुछ और खबरें कि इस वक्त कौन सी मीटिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं और 8 के लिए क्या प्लानिंग की गई है। तो सबसे पहले तो वही कि दुनिया के वो कौन से लीडर्स हैं जिनको इनवाइट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए
और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी 3rd हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में। और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे, श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया है। और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा मॉरिशस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिए। अदर देन दैट सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें राजा पाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है, मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई। जो बड़ी खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा 9 जून को। তো বন্ধুরা, এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি এতদূর পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এর সাথে সাথে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তান এই কারণে উত্তেজিত হয়ে গেছে যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান মানে যেটাকে আমরা বাংলাদেশ নামে চিনি, সেই বাংলাদেশের পিএম শেখ হাসিনা এই আমন্ত্রিত হয়েছে। মানে 9 জুন যেদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শপথ গ্রহণ করবে, সেদিন কিন্তু বাংলাদেশের পিএম শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। উনিও কিন্তু আসতে চলেছে। এই বিষয়টা এখনো মেনে নিতে পারছি না যে আমাদের পড়শি দেশ হয়ে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, অথচ পাকিস্তানকে ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না, যেটা একদমই অপমানের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এর সাথে সাথে বিশ্বের বড় বড় লিডার তো ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা তো পাঠিয়ে দিয়েছে, এমনকি তারাও কিন্তু যুক্ত হতে চলেছে। এই সবকিছুকে দেখে পাকিস্তানের ভীষণভাবে ফাটছে। না জানি এই 5 বছর তাদের সাথে আরো কি কি হতে চলেছে আর ভারত তাদের সাথে কি কি করবে। বন্ধুরা, পুরো ব্যাপারটার উপর আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।